नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बताते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यह बैठक पंजाब में जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा 50 किलोमीटर का क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ के अधीन करने की बात की गई है, उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता ने भाग लिया। पंजाब कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बैठक में भाग लेंगे। पंजाब भाजपा इस बैठक का बहिष्कार करेगी। इससे पहले चन्नी ने इस मामले में रविवार को पंजाब के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। पंजाब सरकार इस बैठक में निर्णायक कदम उठा सकती है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। बता दें कि भाजपा को छोड़कर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए इसे संघवाद और राज्य के अधिकारों का उल्लंघन बताया था। 11 तारीख ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਸਰਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 2011 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਾਗੀ ਹੈ। सर्वदलीय बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस माध्यम से बताने का प्रयास किया कि उन्होंने आखिरकार यह
सर्वदलीय बैठक बुलाई क्यों। उनका कहना था कि वह बार बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उन्होंने, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है और जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। पंजाब में बीएसएफ का 50 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, डिप्टी सीएम ओपी सोनी, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सीएम के साथ डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और कुलजीत नागरा भी मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आगामी समय में विधानसभा सत्र भी बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया था, डिप्टी सीएम ने भी पत्र लिखा था, लेकिन जवाब नहीं आया और ना ही मिलने का समय दिया गया है, जिसके बाद ही अगला कदम उठाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव लाया गया है कि बीएसएफ के मध्य पर जल्द ही पंजाब सरकार विधानसभा सत्र बुलाएगी और सत्र में केंद्र सरकार की ओर से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा सत्र की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट भी करवाई जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई सी। बीएसएफ का जिहड़ा दायरा है वो 15 किलोमीटर तो वधा के केंद्र सरकार ने 50 कर दिता है। उहदे वास्ते असी प्रेस राही भी अपील की है। मैं ते होम मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, लेकिन ना कोई चिट्ठी का जवाब आया। ऐसी टाइम भी मंगिया सी, सानूं टाइम भी नहीं मिलिया। तो अज असी अगला चरण अगे वधाउंदे होए ऑल पार्टी मीटिंग अज सद्दी सी। सारी पार्टियां दे इस दे बारे एकजुटता वास्ते असी बुलाया ते बहुत ही अच्छे माहौल दे विच मीटिंग हुई है। सारियां पार्टियां ने इस मुद्दे ते सरकार दे नाल मिल के इस मुद्दे नूं पहला वाली थां ते लिजाण लई अज सर्वसम्मति दे नाल मता पास कीता कि जिहड़ा यह नोटिफिकेशन होया इस नूं तुरंत रद्द किया जाए ते सारियां पार्टियां इस ते सहमत है। लेकिन जे नहीं केंद्र सरकार करदी तां पार्टियां वल्लों फैसला किया गया है अज मीटिंग दे विच कि बड़ी छेती विधान सभा का सैशन है जिहड़ा वो बुलाया जाएगा इस मुद्दे ते। इस तो इलावा ये भी फैसला किया गया है क्योंकि यह पंजाबीयत दे नाल जुड़िया है। साडा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सबजैक्ट है। फैडरल सिस्टम दे विच डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच साडे हक्कां ते एक किस्म का डाका मारिया गया है। ये चीज़ नूं देखते हुए जो भी संघर्ष करना पएगा पंजाब दीयां सारियां पार्टियां इकट्ठियां होके उस संघर्ष में जूझणगियां। कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस अवसर पर बयान दिया कि 50 किलोमीटर तक का कौन सा बॉर्डर होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन बदली जा रही है। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि ये राजनीतिक मूव है और हर किसी को इसमें आगे आना होगा। मंशा बड़ी साफ है। सेंटर ना सिर्फ फेडरल ढांचे नूं कमजोर कर रहा है बल्कि स्टेट दे विच स्टेट खड़ा कर रहा। पुलिस नूं कोऑर्डिनेटिव सपोर्ट की बजाय सब्सटीट्यूट किया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है। ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर किहड़ा बॉर्डर हुंदा? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलिटिकल गेम, यह पोलिटिकल मूव है।
क्योंकि मैं टाइमिंग ਨੂੰ क्वेश्चन करदा कि ਜਦੋਂ इलैक्शन ਆਉਂਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਥੋਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और इंस्टीट्यूशंस ਨੂੰ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स ਦੇ ਲਈ यूज ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ सीबीआई ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ईडी ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਜਾਇ ਚੰਦ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ सूबे के हक गिरवी धरते कौन कहना प्रेसिडेंट रूल नहीं लगे जी अद्धा सूबा तुसी सबजुगेट करता जदों असी बाई इलैक्शन देखते होंगे कहने बाई इलैक्शन नहीं है जी तो पुलिस एक्शन है तो कौन रोकूगा इन्हों देखो वैस्ट बंगाल च की होया वैस्ट बंगाल दे विच मैं तुहानू कैटेगोरिकली दस रहा 240 केसेस ने accusing the BSF of extra judicial torture 60 केसेस ने of extra judicial execution खत्म मारते and there are 33 cases of the National Human Rights Commission having recommended compensation for the victims. Why is this happening in Punjab? महाराजा रणजीत सिंह का सूबा पहला ही सूबी बनाया हुआ है. Why are you weakening the state? What is the ulterior motive? Is it political? सर्वदलीय बैठक में जहां पंजाब के कई दलों ने हिस्सा लिया वहीं पर पंजाब भाजपा ने इसका बायकॉट किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोहर रंजन कालिया ने कहा कि जब पंजाब में 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र बीएसएफ के अधीन था तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। पंजाब में नशा बढ़ रहा था, पंजाब में तस्करी की वारदात सामने आ रही थी। इसके बाद ही केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया, लेकिन अब सभी को परेशानी होने लगी है क्योंकि इससे पंजाब में नशा तस्करी और अन्य तस्करी रोकने में कामयाबी मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से पंजाब राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विरोध में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी बैठक में पहुंचे हैं। पंजाब भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा भी ऑल पार्टी बैठक के लिए शिरकत करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा भी पहुंचे। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से डॉक्टर दलजीत चीमा और प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा बैठक में शामिल हुए। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोहर रंजन कालिया ने कहा कि पूर्व में बीएसएफ के पास 15 किलोमीटर का दायरा था, तब तक किसी भी सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई। अब तक सीमा पार से हथियार और नशा आ रहा है और बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है, तो राजनीतिक पार्टियों की दिक्कतें हो रही हैं। मनोरंजन कालिया ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए भाजपा ने सर्वदलीय बैठक का बायकॉट किया है। ਜਿਹੜਾ जुरिस्डिक्शन है बीएसएफ की वो कनकरेंट है। बीएसएफ ने पेट्रोलिंग करनी है, देखना ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ स्टेट पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो भी उत्थे आ जा सकती है। फिर एक सर्च एंड सीजर जितना कहेगा उन्होंने प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बीएसएफ जे केस रजिस्टर करना तो स्टेट पुलिस करेगी। तो जिद तक सवाल है खदशा कि भी ये अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। फिर है कि बीएसएफ जी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलिट्री है, वो है जी क्रॉस बॉर्डर जो है इलीगल एक्टिविटीज जी करने प्रयास कर रहे हैं। हूँ खास करके जो ड्रोन के द्वारा जो हो गया कि भी वो जनरली होंगे कि एक पिस्टल और पैकेट ऑफ हीरोइन जी है वो देश जाती है, पिस्टल जी है वो इतने टू इनक्रीज द क्राइम यूज होती है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ।
ऐसे केसेस भी आए। सो इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि 15 ਤੋਂ 50 कर देंगे। फिर है कि ड्रोन का हम लगे सीगा कि व्यक्ति आता सीगा, हथियार लेके आए, गोल्ड लेके आए, ड्रग्स लेके आए। हूँ ये है कि उत्थे वो उत्तर बैठा हुआ है, इधर तो ड्रोन ने आ जाना, उन्हें पता भी नहीं लगता। फायर किया कई बार ड्रोन जो है वो हिट हो गया, नहीं होया तो अपने डिलीवर कर दो वो चीज़। सो इस ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਕੰਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ 'ਚ BSF ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ नहीं है कि अंदर के लोगों को जो है हरास या तंग किया है। पंजाब भर में 22 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, यह घोषणा की है पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार को बिना किसी देरी के दोषपूर्ण और अनुचित फ्यूल नीतियों के कारण पंजाब में पेट्रोल स्टेशन डीलरों को लंबे समय से हो रहे नुकसान और उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा ने सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब पेट्रोल पंप डीलरों को पड़ोसी राज्यों और यूटी की तुलना में पेट्रोल व डीजल पर अधिक वैट के कारण नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में डीलर मार्जिन में संशोधन नहीं किया गया और राज्य के स्टैंडर्ड ऑन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने डीलरों पर अपना खर्च उतार दिया है और आपूर्ति बंद कर दी है, जिससे डीलर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मार्जिन संशोधन और उच्च ईंधन की कीमतों के अभाव में पंजाब के डीलर 7 नवंबर से 15 दिनों के लिए अपने काम के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही पेट्रोल पंप खोलेंगे ताकि खर्चों में कटौती की जा सके। इस दौरान यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो पंजाब के डीलर 22 नवंबर को अपने पंप बंद कर देंगे। हरियाणे नालों ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 94 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆ 5 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ J&K ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 7 ਪੈਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ 6 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ और पेट्रोल 6 रुपये 7 रुपये के करीब हो गया, इतना साडा महंगा है। और देखो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ J&K ਨਾਲ 3 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ मोटी वैट कलैक्शन की गल करिए कि किहड़ी स्टेट ने किहड़े साल च कितना रुपया कमाया। वैट कलैक्शन में 2017-18 पंजाब सरकार ने 6062 करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल तो वैट तो कमाया। 2018-19 पंजाब सरकार ने 6576 करोड़ रुपये हो गया बन के। और जो कोविड आया बड़ा जबरदस्त साडियां सेलां बिल्कुल थले आ गई और इन्होंने रेट ये चक के ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5-5 ਰੁਪਏ 4-4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 5548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ 2020-21 ਚ 591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 21-22 ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹ ਲਓ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਰੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਤੋਂ 8600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਰ
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। मनजीत सिंह महासचिव ने कहा कि पंजाब के 8 सीमावर्ती जिलों के लगभग 800 डीलर बिक्री में 70% की गिरावट के कारण अत्यधिक नुकसान में जा रहे हैं, जबकि मार्जिन में अगस्त 2017 में पिछले संशोधन के बाद वृद्धि न होने व उच्च ईंधन की कीमतों के कारण पूरे डीलर बिरादरी को वॉल्यूम लॉस यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पंचकुला के उपायुक्त कार्यालय में मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि यदि कभी ऐसी वारदात घटित हो जाए, आगजनी की वारदात या फिर बम जैसी घटनाएं घट जाएं, तो उस समय लोगों को क्या करना चाहिए, उसी के मद्देनजर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। पंचकुला सेक्टर 1 उपायुक्त कार्यालय में एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन द्वारा पंचकुला प्रशासन व पंचकुला पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 1 उपायुक्त कार्यालय में बम ब्लास्ट होने पर कैसे बिल्डिंग के बचाव कार्य किए जा सकते हैं और हादसे में घायल लोगों को कैसे बचाव के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस समय मोबाइल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहयोग दिया गया। इस मॉक ड्रिल के इंचार्ज एसीपी ममता सोदा ने किया। पंचकुला के सेक्टर 1 उपायुक्त कार्यालय में बम ब्लास्ट होने की स्थिति में कैसे घायलों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, बिल्डिंग को कैसे सेफ रखा जा सके, बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, उनका उपचार कैसे किया जाए, इस सभी को लेकर यह मॉक ड्रिल था। पंचकुला पुलिस के साथ साथ इस ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग पंचकुला द्वारा एक मॉडल भी तैयार की गई, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक बचाव कार्य को लेकर ड्रिल की गई। लोगों को भी जागरूक किया गया कि कैसे आपदा की स्थिति में बचाव कार्य में प्रशासन व पुलिस का सहयोग करें। एक्चुअली हमारा एक वीक सेशन चल रहा है जिसमें हमने पुलिस फ्लैग डे के रिगार्डिंग ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई हैं और एक ये एक्टिविटी उनमें से एक थी मॉक ड्रिल, जिसमें टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड मॉक ड्रिल थी और इसमें बम ब्लास्ट का एक सीन क्रिएट किया गया है और उसमें रेस्क्यू हमारी पुलिस की टीम से भी किया गया है और इसके साथ ही एनडीआरएफ टीम को भी मौके पे बुलाया गया और उन्होंने भी 2 पर्सन्स को जो है रेस्क्यू किया है। तो इस प्रकार से लोगों को भी अवेयर किया गया भी आपदा अगर कोई आती है, कोई मुसीबत आती है तो कैसे बचाव किया जा सकता है। जी, किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, पब्लिक को भी बताया गया किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस रहेंगे और क्या उसमें कमियां रही हैं ये भी हम देखेंगे ताकि इन फ्यूचर हम कमियों को जो है थोड़ा ठीक कर सकें और हमारी जो मॉक ड्रिल है और एक्चुअल जब कभी ऐसा हो तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से वो काम कर सकें। चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। हर कोई अपनी कमर कस चुकी है। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों से या जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनसे अपील की गई है कि प्रत्येक वार्ड में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें टिकट दी जानी चाहिए या मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि टिकट एक ही है। तो चंडीगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल और प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने ऐसे उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा है कि जिस भी उम्मीदवार को टिकट मिले, अन्य उम्मीदवार या अन्य नेता या फिर अन्य कार्यकर्ता उसकी सहायता करें और विजय दिलाने में मदद करें। चंडीगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने आगामी नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि टिकट के दावेदार हर वार्ड में अनेक हैं, पर टिकट किसी एक को ही मिलेगी, इसलिए जिसको टिकट नहीं मिलता वह भी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करे ताकि बीजेपी को पूरी तरह से नगर निगम में सफाया किया जा सके। चंडीगढ़ अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष धर्मवीर ने की। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला भी विशेष अतिथि के रूप में यहां पर शामिल थे। लोकतंत्र के जो अधिकारों की रक्षा की बात है, वो आज अगर उसकी कोई मिसाल हो कि यहाँ कैसे उसका हनन किया जा रहा है तो वो चंडीगढ़ है। देश के हालात क्या हैं,
देश में हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों पे कहां कहां अत्याचार हुए, कैसे कैसे उनको कत्लेआम किया गया, कैसे कैसे बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, कैसे बलात्कार होने वाली बच्ची की लाश तक जला दी गई, सब चंडीगढ़ वासी जानते हैं। लेकिन जो यहाँ जो एक मार पड़ी, क्योंकि सारा का सारा एससी समाज, इसमें 90% जो एससी समाज है वो कॉलोनियों में रहता है। सबसे पहले यहाँ इस मौजूदा बीजेपी की एमपी ने एक आदेश लागू करवाया कि यहाँ आज के बाद मिट्टी का तेल नहीं बिकेगा। गरीब आदमी के पास कॉलोनी में एक साधन था कि हम कृषि मार्केट से जाके आधा लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर तेल लेके अपना घर का राशन बना ले। बहाना क्या कहा गया कि जी आप सिलेंडर लीजिए, हम आपको फ्री सिलेंडर देंगे। लोगों को एक ताकत डाल दी गई कि 350 रुपए का सिलेंडर है, एक बार सिलेंडर फ्री ले लो। और आज जो स्थितियां बन गई हैं राउत जी, वो 350 वाला सिलेंडर आज 1000 से ऊपर क्रॉस कर गया, और तेल भी बंद कर दिया, और अब लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। अब गरीब खाना बनाए तो कैसे बनाए, ये सबसे बड़ी मार हमें दी गई है। समय के कारण बहुत बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो बहुत अच्छे ढंग से आप सभी ने पहले बोलते हुए कहा है। मैं तो बस 1-2 बात का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, वो है आज के हालात जिनका वो भी कैसे जिक्र हुआ है। अगर कोई रेपुटेशन होगी वो सिर्फ उस पे बल डालने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एडिंग एम्फेसिस टू इट, सिर्फ उसके लिए वो बैठा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर इस हॉल में है जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं। उन्होंने वो संविधान जो बना के हिंदुस्तान को दिया, वो अपने आप में एक निराला संविधान था। दुनिया भर के अच्छे बड़े लोकतंत्र देशों में जाकर वहाँ का सब पूरी स्टडी के बाद, उसके बाद उन्होंने जो चीज अच्छी लगती थी उसके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखती तौर पे एक डॉक्यूमेंट है, वो एक सबसे अहम कानून जो देश का कहा जाता है, प्रथम कानून वो संविधान होता है, वो हिंदुस्तान का बना है। और वो एक भविष्य की तरफ, आगे की तरफ देखने वाला एक हमारा संविधान था। उसका भी मैं ज्यादा ब्यौरा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उसमें ये बात बिल्कुल, जितनी आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स देखें, सभी की रग में एक बात दौड़ रही थी कि हिंदुस्तान एक न्याय संगत देश होगा, हिंदुस्तान एक वो देश होगा जिसकी राष्ट्रीयता, जिसकी नेशनैलिटी किसी धर्म पे, किसी सोच पे नहीं होगी। वो सोच होगी तो वो सिर्फ ये होगी कि संवैधानिक सोच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। और शायद आपके बीच में कुछ को मालूम हो, कुछ को शायद नहीं। उस वक्त ये जब संविधान बना था, उस वक्त आरएसएस का एक मुख्य पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा था ये तो मनुस्मृति के विपरीत है, ये तो हिंदुस्तान के कल्चर के, हमारे संस्कृति के विपरीत है। हाँ, विपरीत था, क्योंकि उस वक्त की जो संस्कृति थी, उस वक्त का जो विचार थे, वो लोगों को बांटने वाले थे, वो लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में, क्लासों में बांट देने वाले थे कि ये राज करेंगे, ये सिर्फ सफाई का काम करेंगे। संविधान ने वो सब चीजें दूर की और एक समानता का एक संविधान, एक समानता का माहौल बनाने के लिए उस वक्त काम किया। आज 7 वर्ष से ऊपर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर पर मोदी जी की सरकार का, और इनका सबसे बड़ा प्रयास आज के दिन इस संविधान को खत्म करने का है। जब ये नया भारत कहते हैं, क्या समझते हैं आप? नया भारत क्या मतलब है? ये अपनी वो बातें हमारे पे लगा देना चाहते हैं जो एक बड़े संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थी, उन्होंने अपना एक जब सेशन होता था उसमें क्या क्या चर्चा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो हिंदुस्तान की रूपरेखा क्या होगी, हिंदुस्तान कैसा देश होगा। उसके बिल्कुल विपरीत आज काम हो रहा है। इस कारण उसको एक नया भारत का एक नाम दे रहे हैं। नितिन राउत ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नगर निगम के चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर उतरने को कहा। नितिन राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बताया कि बीजेपी की केंद्र की सरकार दलित के रिजर्वेशन का कोटा समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश रच रही है, जिसे वह कामयाब नहीं होने देंगे। ये लोग क्या समझाएंगे हमको? जो लोग ब्रिटिशों के गुलाम बने हुए थे, आज हमको कहते हैं कि हम
गुलामी में डालेंगे। इनकी क्या मजाल है हमको गुलामी में डालने की। लेकिन आप शांति से सुने और अपने अकल के दरवाजों को अगर पूरी तरीके से अगर आप खोले तो आपको कुछ समझ में आएगा। अभी तो इन्होंने आपका रिजर्वेशन भी बंद करने की साजिश रचना चालू कर दी। यहाँ का, जैसा कि चावला जी यहाँ कह रहे थे कि यहाँ का शिक्षा का प्रतिशत ये सबसे ज्यादा है और दलित वर्ग भी यहाँ का पढ़ा लिखा है, नौजवान वर्ग भी पढ़ा लिखा है। मैं इन नौजवानों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या नौकरियां दे रहे हैं? नौकरियां मिल रही आप लोगों को? नहीं मिल रही, क्योंकि इन्होंने लैटरल एंट्री शुरू कर दी है। जो कांग्रेस की सरकारों ने नौकरी के लिए यूपीएससी के एग्जाम चालू किए थे, पीएससी के एग्जाम चालू किए थे, इन्होंने डायरेक्ट भर्ती करना चालू कर दिया अपने मंत्रालयों में। तो तुमको क्या खाक नौकरियां देने वाले, आप ध्यान में रखिए। अगर आपको नौकरी अगर चाहिए और रोजी रोटी को अगर बरकरार रखना अगर है तो पवन बंसल जी का आशीर्वाद जरूर लेना होगा। अरे कौन किसको घर का छत मुहैया कराता है? यह इंसान है जिस इंसान ने आपको घर भी दिया और कारोबार भी दिया है। चंडीगढ़ के यूटी सेक्रेटेरिएट के बाहर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्हें वेतन लेट मिलता है, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। इसको लेकर वह कई आला अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आखिरकार उन्होंने सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। यदि इसके बाद भी उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। सोमवार को सेक्टर 9 यूटी सेक्रेटेरिएट के बाहर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यह सभी कर्मचारी सेक्टर 16 स्थित CPWD के अंतर्गत मेंटेनेंस का काम करते हैं, जिन 83 कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके बावजूद वहां पर ड्यूटी पर वह जा रहे हैं और अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं। यह सभी कर्मचारी इस बात को लेकर चीफ इंजीनियर से मिल चुके हैं, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनका ठेका भी बहाल किया जाएगा और उनका वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है, जिस करके इन्हें यूटी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। इन कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारों का सीजन है और इसमें वेतन ही समय पर नहीं दिया जा रहा, लेकिन बावजूद इसके ठेकेदारी की लापरवाही के कारण उनका वेतन हर महीने ही लेट हो जाता है। इस बार आश्वासन के बाद भी उनका वेतन नहीं दिया गया। अगर दिवाली से पहले उनकी सैलरी नहीं आती तो वह इस बार दिवाली भी काली दिवाली के रूप में ही मनाएंगे। जो वर्कर बैठे हैं CP3 मेंटेनेंस के अधीन काम कर रहे हैं 16 सेक्टर, और ये CB ओझा जी चीफ इंजीनियर हैं, जिनके अधीन ये सारे मेंटेनेंसों में काम कर रहे हैं। ये 83 वर्कर हैं जो पिछले 2 महीने से, शोषण तो इनके साथ कई सालों से हो रहा है, लेकिन जब से फेडरेशन आई है इनको 4 महीने की सैलरी आसमी इंटरप्राइजेस था जो छोड़ के भाग गया इनको, तो 4 महीने की सैलरी इनकी तो हमने किसी तरीके दिलवा दिया। अभी दीपावली के समय में सर इनको लगातार 2 महीने से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपका ठेका हो रहा है, ठेका हो रहा है, लेकिन आज तक ठेका नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके कमियों की वजह से, जैसे इनके अधिकारी बैठे हैं, ऑफिसर क्लर्क बाबू जो बैठे हैं, इनको काम नहीं आता। इनके काम ना होने की वजह से, और आप देखिए कि गलती अफसरों की सज़ा ये वर्कर भुगत रहे हैं। और ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सारे फेस्टिवल निकल गए और अगले 4 तारीख को अगले महीने में दीपावली है सर, और इनकी कोई सैलरी नहीं, इनको ड्यूटी पे नहीं लिया गया। 2 महीने से ये यही आश्वासन देके इनको रखा गया कि आपका ठेका हो रहा है, और कंटिन्यू ये मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। हम जब परेशान हो गए, एक बार CB ओझा साहब से भी मिला, चीफ इंजीनियर साहब से भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ठेका हो जाएगा, लेकिन ये सर मनमानी कर रहे हैं, वर्करों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चंडीगढ़ में मैं बताना चाहूँगा किसी भी संस्था में कोई ब्रेक नहीं डाला जाता, लेकिन इनके साथ हर साल 1-2 महीने का ब्रेक डाल दिया जाता है, जबकि इनके पास बजट होता है,
जब चंडीगढ़ में और रूल सभी कर्मचारियों के ऊपर एक लगते हैं तो इनके ऊपर क्या ये कहाँ का रूल लगता है? इनको क्यों गैप दिया जाता है, इनका ब्रेक क्यों दिया जाता है? और त्यौहार के सीज़न में इनको बेघर करके इनके घर में खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, ये त्यौहार कैसे मनाएं? इसलिए ये परेशान होकर आज ओझा साहब के दरवाजे के सामने आए हैं कि कंटिन्यू जब तक इनका मसला हल नहीं होता, इनको ड्यूटी पर नहीं चढ़ाया जाता और इनको सैलरी नहीं मिलती, तब तक यहाँ से ये नहीं उठेंगे सर। मुश्किलें इतनी हैं, फेस्टिवल इन लोगों के लिए नहीं है सर। जो इनके लिए तो ये है कि सर 2 वक्त का इनको खाना मिल जाए, इनका घर, इनके बच्चे जो 2 वक्त का खाना खा ले। फेस्टिवल ये गरीब वर्कर इनके बस का नहीं है मनाना सर, क्योंकि इनके साथ जो चंडीगढ़ में शोषण हो रहा है, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी जिसको बोला जाता है, वहाँ पे शोषण हो रहा है। इन वर्करों का सर 2-2 महीने से बगैर ठेके के, बगैर तनख्वाह के ये वर्कर काम कर रहे हैं। और हमारे चीफ इंजीनियर साहब एसी में बैठ के बड़े बड़े वादे तो हमसे करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, मीटिंगों में आश्वासन भी देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक इन वर्करों के लिए कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार आते हैं, मनमानियाँ करके इन वर्करों से पैसे ऐंठते हैं। ऐंठने के बाद जब ठेकेदारों से इनके हक मांगे जाते हैं तो ठेका छोड़ के ठेकेदार भाग जाते हैं। उसके बाद बचते हैं तो ये वर्कर। अब वर्कर कहाँ जाए सर? ठेकेदार अपना ठेका छोड़ के भाग गया, डिपार्टमेंट इनको बोल रहा है कि ठेका नहीं है जी, ठेका हो जाएगा तब आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वर्कर ने तो ठेका करना नहीं है, ये तो उसके डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों का काम है, जो कि उनकी कमियों के कारण आज ये वर्कर मजबूर हैं ये सेक्टर 9 सेक्टर 8 के बाहर बैठने के लिए, चीफ इंजीनियर साहब के कमरे के बाहर बैठने के लिए मजबूर है। इन वर्करों का कसूर सिर्फ यही है कि ये वर्कर अपना ईमानदारी से चंडीगढ़ में काम करते हैं, ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना चंडीगढ़ में कमाने आते हैं, लेकिन शायद इनकी ईमानदारी और जो ये इतनी मेहनत से काम करते हैं उसका फल ये हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हमारे चीफ इंजीनियर CB ओझा जी बैठे हैं, हमारे एक्सियन है अनिल जी, शायद उनको ये इनकी ईमानदारी नज़र नहीं आती, जिस कारण आज मजबूर हैं ये वर्कर यहाँ बैठने के लिए। और मैं UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आज इन वर्करों के सामने आपके माध्यम से इन उच्च अधिकारियों को ये बात बोलना चाहता हूँ सर, अगर इन वर्करों का दिवाली तक कोई हल नहीं होता तो हम मजबूर हो जाएंगे उच्च अधिकारियों के घर के बाहर दिवाली मनाने के लिए, या फिर हम चंडीगढ़ की सड़कों पे उतर के काली दिवाली मनाएंगे। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी शहर में बहुत कुछ घटा। यदि आप भी अपने शहर की घटनाओं को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव, और सब्सक्राइब कीजिए रोशन भाव और देखते रहिए सिटी हलचल। और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।